मुझे ये याद रखना है बस कि अगर अभी मैंने पैनिक किया तो फिर रिजल्ट में उसका फर्क पड़ेगा। Rajat Gupta, All India Rank 1 in JEE Advanced 2025. जब भी हम सीबीटी देने जाते थे तो ये तो होता ही था कि सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो रहा है, और ये टेस्ट इसका भी होता था कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अपना मन कैसे रख रहे हो, शांत रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। But this isn't a story of talent or luck. ये बात है clarity की. And when everything around you feels uncertain. इन 3 साल में मैंने दोस्त बनाना सीखा और दोस्तों से कुछ सीखना भी सीखा। आपको भूल जाना है कि ये मेरे से आगे है या पीछे है, आप उनके दोस्त हैं बस। It's not every day we sit across All India Rank 1. टफ है क्योंकि लंबा है बहुत ज़्यादा। We'll dive into the pressure, the self-doubt, the group dynamics. रिलेशंस अच्छे बनाए, क्योंकि वो जो रिलेशंस है वो 2 या फिर 3 साल जितने समय के लिए, 1 2 3 साल जितने समय के लिए आप रहने आ रहे हो वो चलेंगे और वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। Imagine this. You're 16. Everyone around you is chasing something. Some want to code, some are preparing for Olympiads, and some just want to survive class 10th. But you choose the one path that scares most students. JEE. Not because someone told you to, but something inside whispered, let's see how far I can go. 2 years later, you don't just clear the exam, you top it. Today, I'm sitting across from the one who did exactly that. Rajat Gupta, All India Rank 1 in JEE Advanced 2025. But this isn't a story of talent or luck. ये बात है clarity की. And when everything around you feels uncertain, of choosing depth over distraction, or showing up every single day, even when mock tests crash and confidence takes a hit. We'll talk about why Rajat chose JEE back in class 10th, how he built his foundation with mentors like Dr. Sona Rajora and Kapil Vadbasar, and what made him stick to one book instead of chasing 10. We'll dive into the pressure, the self-doubt, the group dynamics, and what it really feels like to grow up in Kota, the coaching capital of India. This isn't your typical topper story. It's raw, it's real, and it's packed with the kind of mindset shifts no test series can teach you. So if you have ever asked yourself, क्या मैं भी कर सकता हूँ? This episode won't give you a motivational speech. It'll give you the truth. Welcome to JEE Unfiltered, and let's hear it from Rajat Gupta, All India Rank 1. Good to have you here. It's not every day we sit across All India Rank 1. But I'm curious. After all the celebration, जब आप अकेले थे, sitting by yourself, what was going on in your mind? Was it relief, disbelief, या just silence? साइलेंस तो कोई भी तरीके से नहीं था। जो सेलिब्रेशन वगैरह हुआ तो उस समय हम थे आइलैंड में, और उसके बाद जब घर पे आए तो मैंने देखा अपने फ़ोन में, मतलब इतने सारे कॉल्स आए हुए थे, और सारे मतलब अपने फ्रेंड्स, टीचर्स होते, वेल विशर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको वापस भी कॉल करना चाहिए क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता ही है आपके सक्सेस में। मतलब उन्होंने, उनका आशीर्वाद ही मान लीजिए, कुछ नहीं तो उनको भी आपको वापस कॉल करना रहता है। तो मैंने वही किया। फिर उसके बाद तो मैं थोड़ी देर के लिए चैन से सोया बिना, एकदम दिमाग ब्लैंक करके। उसके बाद मुझे मुंबई जाना था, पर ये था जो। So if you had to capture your JEE journey in just 3 words, which ones pop into your mind first? टफ बट पॉसिबल। And why? टफ है क्योंकि लंबा है बहुत ज़्यादा, पर पॉसिबल भी है क्योंकि लंबा है इसका मतलब ये नहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना है, करते रहना है लगातार, मतलब ऐसा आपको पीछे मुड़ के बार बार नहीं देखना, और पॉसिबल तो होगा ही सही, मतलब Right, क्योंकि हर साल कोई ना कोई निकालता ही है। So, okay, let's rewind to class 10th for a second. Basically, boards थे, Olympiads थे, all the options were open. What made you think कि हाँ, let's try for JEE? And was it clarity or was it curiosity at first? मतलब ये एक कॉमन ओपिनियन है कि बोर्ड्स आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं दिलवा सकता। मतलब बोर्ड्स आपके सीवी में जाएगा कि हाँ मेरे बोर्ड में इतना था, लेकिन आप बोर्ड्स के बेसिस पे आप अपने जॉब नहीं ले सकते। Right. जॉब के लिए आपको कॉलेज ही चाहिए रहता है, कॉलेज के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहिए रहता है। आजकल तो ओलंपियाड से भी एडमिशन हो जाते हैं कॉलेज में। ये एक जॉब वाला रीज़न तो है ही सरी। एक और रीज़न ये था मेरे दिमाग में कि जो जेई का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, मतलब पीसीएम है ही सरी, और उसके अंदर भी आप हर चैप्टर को बहुत एकदम डेप्थ में जाके पढ़ते हो। Right. मुझे तो मज़ा आता था मतलब देखने में कि देखो मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, और इस चैप्टर की चीज़ मैं दूसरे चैप्टर में लगा पा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट की चीज़ मैं दूसरे सब्जेक्ट में लगा पा रहा हूँ। तो वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत मज़े की चीज़ होती थी कि अरे वाह मैं चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ, ऐसा इधर से उधर कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं opens up your brain, no? हाँ, अरे वो तो मतलब वो नो डाउट वो है ही सरी। मैथ्स जो होती है वो किस लिए होती है? मैथ्स का पर्पस मेरे लिए तो शुरुआत में यही था कि मेरा दिमाग खोलने में बहुत काम आई थी। तो हाँ। Right. So, Rajat, a lot of toppers this year, like yourself, Saksham, Vedansh, and Garv and Larissa.
So you all had one thing in common. You were all taught or mentored by Alan's finest and also our authors, Dr. Sonal Rajora and Kapil Wadhwa sir. So what's the best thing about their teaching or their books that you like? KW सर और सोनल सर की बुक्स मैंने मतलब जेई के प्रिपरेशन के समय ही करी थी, और ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था, पर हाँ जो चैप्टर्स में मुझे डाउट था या फिर जो चैप्टर्स मुझे ऐसा लगता था मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने करी थी। सोनल सर के बुक के बारे में वो मैंने अभी लेटेस्ट करी थी, मतलब जेई से कुछ दिन पहले ही करी थी। उसके बारे में मैं एक अच्छी चीज़ कहना चाहूँगा, वहाँ पे जो सवाल है वो लेवल्स में डिवाइडेड है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने से बता रखा है कि अच्छे प्रॉब्लम से और अच्छे प्रॉब्लम से और ये और अच्छे प्रॉब्लम से, ऐसे उन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो उससे एक हेल्प होती है। प्लस उधर क्या है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगे, जैसे कुछ एक्सेप्शन हो गया से, या फिर कुछ एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हो गया तो आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। तो इसलिए मैं सोनल सर की बुक तो मतलब रेफर करूँगा। और KW सर की बुक भी मतलब एज अ क्वेश्चन बैंक फॉर IOC मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। थ्योरी मैं कभी पढ़ नहीं पाया, बट क्वेश्चन बैंक मुझे बहुत बढ़िया लगा। So Rajat, for those students who are just beginning, चाहे वो किसी और कोचिंग में हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, I think every student wants to know which books was Rajat Gupta studying from ठीक for है। each subject. सी एलन मॉड्यूल्स करना तो मतलब ऐसा था कि करना ही है, तो होमवर्क में भी असाइन होते थे, और तो मतलब एलन मॉड्यूल्स तो करना ही था हमें। और आई गेस वो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक प्लस अच्छी एक थ्योरी की बुक भी थी, क्योंकि उसके अंदर मतलब सब कुछ अच्छे अमाउंट्स में दिया हुआ है, जितना जेई रेलेवेंट है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ ही है, तो वो एक अच्छा मतलब सोर्स हो सकता है पढ़ाई के लिए अगर आप कहीं से मैनेज कर पाएँ तो। और उसके अलावा मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो फिज़िक्स में मैंने HCV, पाथफाइंडर और इरोडोव करी थी। मोरओवर हमारे टीचर्स ने मतलब एक दो बार बोला था कि SBT करना चाहो तो कर सकते हो, शशि भूषण तिवारी जी की जो किताब आती है वो करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसा है, कुछ नहीं मतलब वो पूरी किताब ही कुछ ऐसी है कि उसके अंदर जेई लेवल क्वेश्चंस है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, उसके अंदर मतलब जेई लेवल क्वेश्चन, जैसे HCV को आप जेई एडवांस लेवल नहीं बोल सकते हो, उसके अंदर जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक हो सकता है, ऐसे हमारे टीचर्स ने बोला था। खैर मुझे तो करने का बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं, थोड़ा बहुत मैंने किया था, पर हाँ मुझे बहुत बढ़िया लगा। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एलन मॉड्यूल्स मेरे लिए तो मोस्टली क्वेश्चन बैंक ही थे, लेटर पार्ट ऑफ द सिलेबस में वो एक थ्योरी बुक भी हो गए, लेकिन बाकी किताबों की अगर बात की जाए तो मैं JD ली कंसाइज गो हमने पढ़ी, मतलब कुछ चैप्टर्स पढ़े जो हमारे मॉड्यूल्स में मतलब टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि मॉड्यूल्स के साथ साथ उनको भी पढ़ो। और सोनल राजोरा सर की बुक मैंने करी, उसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि उसके अंदर लेवल्स में डिवाइडेड है क्वेश्चंस, सो आप वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प रहती है कि पहले मैं थोड़े कम लेवल वाले क्वेश्चन करूँ, फिर थोड़े ज़्यादा, फिर थोड़े और ज़्यादा, उससे भी एक डेवलपमेंट आता ही है। एक लेवल होना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले नीचे से शुरू कर रहे हो ग्रास रूट लेवल से, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव करते जा रहे हो, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कपिल वाधवा सर की भी मैंने बुक करी थी, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है, थ्योरी पढ़ने का तो मुझे मौका मिला नहीं उसके अंदर से, पर क्वेश्चन बैंक वाइज वो बहुत बढ़िया है। और PC में मैंने नीरज कुमार सर की बुक नियरली पूरी कर ली थी। और मैथ्स में तो एलन मॉड्यूल बहुत ज़्यादा है, उसी को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, तो ऊपर से असाइनमेंट्स वगैरह भी होते थे। फिर कुछ चैप्टर्स में मतलब मोस्टली 11th के कुछ चैप्टर्स में हमारे टीचर बोलते थे कि इस चैप्टर के लिए ये वाली कुछ एक बुक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए सर ने बोली थी एस एल लोनी कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी शायद एस एल लोनी आती है, वो करने को बोली थी, मतलब नाम मैं भूल गया पर हाँ आती है, वो सर ने करने को बोली थी। सीक्वेंसेस सीरीज़ में हमने हॉलनाइट करी थी थोड़ी, तो कुछ चैप्टर्स के लिए सर ने बोला था कि ये वाली बुक की जा सकती है, और बाकी एलन मॉड्यूल्स वर मोर देन सफिशिएंट, एलन मॉड्यूल्स एंड द असाइनमेंट्स वे वर गिवन। So Rajat, in your previous talks, you've often talked about repetition over variety. So basically, instead of picking 3 different books, you'll just dive deep into one book and keep on repeating that, right? हाँ, And I think we want to know कि why do you think that works better and how did you apply it in your own preparation? पहला तो था कि टीचर्स यही बोलते थे कि बहुत जगह हाथ मत मारो कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उससे टाइम वेस्ट भी होता है, और बहुत अच्छा थ्योरी भी आप मतलब थ्योरी पे होल्ड भी नहीं आता।
ये मैं तो ट्राई नहीं कर पाया, पर हमारे टीचर्स कहते थे और हमारे टीचर्स को बहुत एक्सपीरियंस है तो मैंने बिलीव कर लिया। देखिए फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कंसेप्ट होते नहीं, कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो आपको अगर कंसेप्ट अच्छे करने हैं तो आप सेम क्वेश्चन बैंक को बार बार हिट करिए। उससे क्या होगा कि आपको एक तो ये क्लैरिटी आएगी कि कौन सा सवाल कितने समय में होता है मुझसे, कौन सा सवाल मेरे से नहीं होगा कितने समय में होगा। ये सब आपको एक आइडिया लगता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम हॉल में, कि मेरे को कौन सा छोड़ना है, इसमें मेरे को देर लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी एक डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि मतलब कुछ आपके क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क्ड रहते कि ये अच्छे क्वेश्चन है, ये थोड़े से मतलब हो जाएंगे वैसे वाले क्वेश्चन है, तो उसमें क्या रहता है कि कभी आपको झट करना हो तो आपके पास मार्क्ड है कि ये वाले अच्छे क्वेश्चन है, ये मैं कर लेता हूँ, Right. मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था, और बस मुझे तो इतना ही याद है। Okay. So, how did your learning style evolve? I mean, what was your approach in the first year? What was it like in the second year? And how did you change that approach during the final few months of before your exam? And if you can tell that for each subject. एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक रफ आइडिया था मुझे कि जब मैंने जर्नी शुरू करी थी तो मैं कुछ इस तरीके से कर रहा था कि जितने सवाल कर लूँ उतना बढ़िया। मतलब असाइनमेंट्स तो होते ही थे, तो स्टार्टिंग में हाँ कि जितने कर लूँ उतने बढ़िया, और ये बहुत मतलब अच्छा भी चला एक पॉइंट तक। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा समय लग रहा है, कुछ मैं बहुत ज़्यादा ही नया पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने स्लो डाउन किया, और फिर एंड तक आते आते वो कुछ ऐसा हो गया था कि भले कम सवाल करूँ लेकिन अच्छे सवाल करूँ। मतलब आसान सवालों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना उतना मतलब रीजनेबल नहीं है। आप कुछ नया सीखो, ऐसे सवाल लो ना, मतलब जो आता है उसको बार बार करके क्या फ़ायदा है ना। तो मतलब वैसे ही था कि कुछ मैं नया सीख रहा हूँ, उसके लिए फिर समय भी लगता है। तो ऐसे सवालों पे मैंने जंप किया था कि थोड़े मुश्किल है, समय लेंगे लेकिन हो जाएंगे, तो उनको मैं शांति से करता था। सब्जेक्ट वाइज अगर आप पूछें तो केमिस्ट्री का मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली। यस, केमिस्ट्री में पहले मेरी मेंटालिटी, पहले जो हमें पीसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था हमारा, और आईओसी में मतलब थोड़ा कम ही पढ़ाया था। तो पहले मेरी मेंटालिटी थी कि केमिस्ट्री में भी कि जल्दी जल्दी सवाल कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा याद करने का था नहीं तब, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ओसी हमारी शुरू हुई, आईओसी भी बाकी की सर ने करवाई, और पीसी में भी मतलब जो थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट था वो करवाया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब याद करने वाला फेज़ आ गया। तो फिर उसके ऊपर मैंने एक बार को अपने समय का बाउंड साइड में रख दिया कि मुझे इतने समय में ही करना है। अगर आपको कुछ याद करना है तो उसके ऊपर समय देना पड़ेगा, और बहुत समय देना पड़ेगा। उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी झट याद कर लेता हूँ, नहीं होगा याद। और वो जो बहुत समय देने वाली बात है वो भी बहुत बार करनी पड़ेगी, कि आज लेके बैठे, फिर थोड़े समय बाद फिर लेके बैठे, और वो करना ही पड़ेगा अगर याद करना है। तो यही है तरीका, हमारे टीचर्स ने भी यही सजेस्ट किया, और हाँ मैंने भी यही प्रैक्टिस किया था। Got it. So Rajat, जब आप पढ़ रहे थे कभी आपको लगा कि you just continuously studying but you're not able to absorb anything? How did you break that loop? ये मोस्टली केमिस्ट्री में ही होता था कि मैं पढ़े जा रहा हूँ पर कुछ टिक नहीं रहा इधर। तो उस समय या तो मैं सब्जेक्ट स्विच कर लेता था, या फिर मैं मतलब जैसे मेरी बहन है उससे बात कर लेता था, या फिर खेलने वगैरह चले जाता था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एकदम दिमाग बंद कर गया काम करने का, तो कुछ भी ऐसा करें जिससे मतलब आप उस सब्जेक्ट से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाएं, कुछ ऐसा। You know, I would like to say कि this phase जहाँ पे student is just continuously studying but you know he's not able to get anything, he's trying to solve the questions but उससे solve नहीं हो रहे हैं, even easiest of the easiest, I think that breaks a lot of students. It is not to be considered as a failure but just a part of the process. बिल्कुल ठीक है, मतलब and when someone like you says it, I think it really helps those students who are going through the similar thing right now, right? So that brings me to my next question. हर सब्जेक्ट का एक अलग रिदम होता है। So at one point आपका फिजिक्स का फ्लो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, but at that point आपका मैथ्स का फ्लो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। And this question is for those students जो who are in the current situation जहाँ पे उनका एक सब्जेक्ट स्टक हो गया है। How did you basically get back on track and how did you personally build momentum in the subject that you were stuck? ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं था उसका, बट होता था कभी कभार कि 2 सब्जेक्ट बढ़िया चल रहे, तीसरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है या फिर सवाल नहीं बन रहे, तो फिर मैं अपना टाइम थोड़ा शेड्यूल देखता था,
फिर मुझे रियलाइज़ होता था कि एक्चुअली मैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम समय दे रहा हूँ। फिर मैं समय थोड़ा बराबर डालता था, या फिर वो जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालता था, मतलब थोड़ा रिकवर करने के हिसाब से, और चीज़ें फिर ट्रैक पे आ जाती थी। तो मुझे कभी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके ऊपर। Okay. So, in one of your earlier talks, you mentioned that any student who is starting their journey should not focus on the rank of the mock test, basically the result of the mock test. So, when you got your results in the first mock test, or starting mein, whenever you used to get your result, how did you motivate yourself? कि हाँ, this shouldn't turn out to be a stress for me, but a learning for me. सी रिज़ल्ट में 2 चीज़ें होती है, एक होती है रैंक, एक होता है नाम। नाम को इग्नोर करना है कि मेरे से ऊपर कौन है या फिर मेरे नीचे कौन है, उसको इग्नोर करना है। मेरी रैंक क्या है वो एक बार को आप देख सकते हो, और उसको भी पॉजिटिव सेंस में ही लेना है कि इस बार इतनी आई है, ठीक है, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे लिए तो वो एक एज अ कंपटीशन होता था ना, मतलब सबके लिए कंपटीशन ही होता है वो। पर उसके अंदर ऐसा नहीं था कि यार इसके कैसे ज़्यादा आगे, वो नाम इमेटेरियल होता था। मार्क्स होते थे, मार्क्स वर्सेस रैंक, वो एक देखने लायक चीज़ होती थी। और फिर अपना एक पेपर होता था कि मैंने यहाँ गलती की है, यहाँ इम्प्रूव होने का स्कोप है, यहाँ पे मैंने ये गलती की है, अगर नहीं करता या फिर सिली मिस्टेक ये रही मेरी, ये मैं कहीं नोट कर लूँ, या फिर ये मैं नहीं करता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते, वैसा कुछ। So Rajat, when you're surrounded by so many students, I think it's natural to compare. What advice would you give to those students who are stuck in that comparison loop? जो ये कंपटीशन है, आप कंपैरिजन को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हो, पर उस कंपैरिजन को पॉजिटिव वे में लेना और सही तरीके से करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपका कंपटीशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, नाम से नहीं होना चाहिए आपका कंपटीशन की से मतलब एक्स के मेरे से ज़्यादा आगे, वाई के मेरे से कम आए, वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरी रैंक इतनी है, मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ, वो एक रहना चाहिए। और आपके फ्रेंड्स आपके ओपोनेंट्स हैं, आपके दुश्मन नहीं, ये याद रखिएगा। आपके फ्रेंड्स ही आपके ओपोनेंट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। पर उससे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मतलब आप थोड़ी सी उनसे चीज़ें छुपा रहे हो, वो सब नहीं रहना चाहिए। डेवलपमेंट तभी आता है जब आप उनसे ओपनली बात करते हो, वो आपसे ओपनली बात करते हैं, और कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस होते हैं। कोई कुछ छुपा के आगे नहीं निकल सकता, गारंटीड। So basically, I mean, you're right. I think motivation रहनी चाहिए. If you are comparing, and if you're comparing with your friends, motivation रहनी चाहिए, but you shouldn't take pressure out of that. हाँ, Right? So Rajat, group dynamics, it can be tricky. Sometimes आपके दोस्त आपकी लाइफ में क्या impact ला रहे हैं वो realize ही नहीं होता है. And in the beginning, in the initial stages, how did you get to know कि which peer group was actually helping and which was pulling you off the track? मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा इस मामले में कि मेरे सारे दोस्त बहुत बढ़िया थे, और मुझे दोस्तों को चूज़ करने की मतलब ऐसे ऑप्शन मुझे मिला नहीं। मेरे सारे क्लासमेट्स मेरे दोस्त ही थे। मैंने कभी भी ऐसे पिक नहीं किया कि तू मेरा दोस्त नहीं। सारे ही बहुत बढ़िया थे, सारे अपने आप में अपना डेवलपमेंट और अपने मतलब आजू बाजू वालों को कुछ सिखा के ही जाते थे। तो बहुत मैं फॉर्चुनेट रहा, मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ उन सबको। पर हाँ, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से एक अच्छा पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, आपको पता पड़ता ही होगा कि कुछ बच्चे मतलब दूसरों की बात सुन के अपने मतलब अपनी जो डिसीजंस है वो बहुत बदल लेते हैं, और वो बहुत क्रिटिकल चेंजेस होते हैं आपके बाकी आगे के जीवन में। तो केवल दोस्तों के या फिर केवल मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, हाँ, उनके मतलब इन्फ्लुएंस में आके आपको अपने डिसीजंस नहीं चेंज करने चाहिए। मतलब बाकियों से भी, पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह से, मेंटर्स से भी डिस्कस करना चाहिए। Okay. So Rajat, when a student comes to Kota for the first time, what should he really focus on for the first 2 weeks, and what are the traps that he should avoid? और ये क्वेश्चन मैं अपने पिछले इंटरव्यू में भी पूछ चुका हूँ, but your advice, since you are born and brought up in Kota, I think it's really going to help some students. से आप कभी भी कोई नई जगह पे जाते हो, मैं भी कोई नई जगह पे जाऊँगा, तो आप पहले 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते क्या करते हो? आप सिचुएशन थोड़ी समझते हो कि क्या हिसाब है, आप अपना रूम सेट करते हो। मोर इम्पॉर्टेंटली आप दोस्त बनाते हो, कुछ रिलेशंस बनाते हो कि हाँ ये अपनी आंटी हैं, ये सर हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो आंटी और सर तो चलो ठीक है, दोस्त अच्छे बनाए, मतलब फैक्ट जनरलाइज भी किया जा सकता है, रिलेशंस अच्छे बनाए, क्योंकि वो जो रिलेशंस है वो 2 या फिर 3 साल जितने समय के लिए, 1, 2, 3 साल जितने समय के लिए भी आप रहने आ रहे हो, वो चलेंगे।
और वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब थोड़ा मोड़ा भी नहीं कि हाँ चलो ठीक है दोस्त है चल रहा है अपने साथ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले वो आपकी लाइफ को। तो ये एक ट्रैप है कि आप अच्छे दोस्त मतलब बुरे दोस्त ना बना लो, ये एक ट्रैप है, और कुछ बुरी आदतें ना उठा लो बस। ओके, a lot of students think कि घर से पढ़ना बेटर है या हॉस्टल से पढ़ना बेटर है। आप घर पे पढ़ते थे, आई थिंक योर peers were studying in the hostel. So as per your observation, what do you think is better, or what are the pros and cons of studying in whichever situation, and how can a student make the best in a certain situation he's studying? घर पे रहने का मतलब एक वो फ़ायदा है कि पेरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, दोस्त भी होते हैं कुछ पुराने दोस्त, तो वो एक फ़ायदा रहता है घर पे रहने का। हॉस्टल में रहने के अपने फ़ायदे होते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब आपको चाहिए आप कोई भी अपने कोचिंग वगैरह जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप फ्रीली जा सकते हो, वहाँ पे बैठ के पढ़ो, ये सब प्लस पॉइंट रहते हैं। शुरुआत में तो मैं भी यहीं पे घर पे ही पढ़ता था, पर जैसे जेई से रफली ऐसा 4-5 महीने पहले फिर मैं जाके आइलैंड में बैठता था, वहाँ पे क्लासरूम में रहता, मैं यहीं पे था, रात को यहीं सोता था, खाना पीना सब यहीं होता था, और वहाँ पे बैठता था, वहाँ पे जाके पढ़ता था, क्योंकि आखिरी के समय में फिर आपको एकदम फुली कंसंट्रेटेड हो जाना है। Right. मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई नहीं जब मैं यहाँ पे शुरुआत में पढ़ता था तब, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत लाइटली लेता था, जैसे मैंने बाकी जगह पे बताया कि मैं खेलने वगैरह भी जाता था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। तो शुरुआत के फेजेस में मेरे लिए तो घर पे रहना बहुत ज़्यादा सही रहा था, क्योंकि लाइट मूड रहता था उससे बहुत ज़्यादा। फिर आखिरी में जब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अब केवल पढ़ाई में लग जाओ, तो फिर मैं कोचिंग में बैठना मैंने शुरू किया। हॉस्टल लाइफ में भी जो मेरे फ्रेंड्स थे तो वो भी शुरुआत में उनका भी ऐसा ही हिसाब था कि पहले हॉस्टल में ही रह रहे थे, फिर आखिरी के कुछ महीनों में भी उन्होंने भी क्लास में आके बैठना शुरू कर दिया। तो यही था, मतलब बेसिकली जब आप हॉस्टल और घर पे रह रहे हो तो आप अपने हिसाब से रहोगे कि आपको कहाँ बेटर लगता है, मेरे कहने से नहीं होगा। प्रोस एंड कॉन्स वही है कि घर पे रिश्तेदार वगैरह भी आते रहेंगे, ये सब होता रहेगा, पर एक मूड लाइट रहता है उससे, तो ये एक फ़ायदा है घर पे रहने का। हॉस्टल में रहने का ये फ़ायदा है शांति, एकदम शांति, पर आखिरी में आपको वही करना है कि सबसे आइसोलेट हो जाना है, खुद का काम पे फोकस करना है और समय अच्छा खासा देना है। Okay. So, Rajat, during your mock tests, what were the 1 or 2 real strategies that you used to apply, and basically how did you replicate that in your final day? एक तो स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे ये याद रखना है बस कि अगर अभी मैंने पैनिक किया तो फिर रिज़ल्ट में उसका फ़र्क पड़ेगा, रिज़ल्ट मेरा ख़राब हो जाएगा। पैनिक नहीं करना, ये एक अपने आप में स्ट्रैटेजी, और ये करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसे नहीं आएगा कि यार इस बार मैं पैनिक नहीं करूँगा, ये इससे नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। और जब भी हम सीबीटी देने जाते थे तो ये तो होता ही था कि सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो रहा है, पर ये टेस्ट इसका भी होता था कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अपना मन कैसे रख रहे हो, शांत रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। हमारे टीचर्स भी यही बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते, ये आपको थ्रू द ईयर्स प्रैक्टिस से ही आएगा। Coming to my last question, Rajat, now that JEE is over, you are going to attend even a tougher exam than JEE, which is life. So, what's one thing about your JEE journey that changed you, not just academically, but as a person overall? इन 3 साल में मैंने दोस्त बनाना सीखा, और दोस्तों से कुछ सीखना भी सीखा कि आप अगर कुछ किसी से सीख रहे हो तो आपको शांति से पीछे बैठना होगा, अपना एरोगेंस वगैरह साइड में रखना रहेगा, वो मतलब आपको भूल जाना है कि ये मेरे से आगे है या पीछे है, आप उनके दोस्त हैं बस। और एक बहुत क्रूशियल चीज़ हमने सीखी, हम सब ने सीखी, पेशेंस। जब आप 3 साल केवल जेई के लिए पढ़ते हो तो वहाँ पे भी पेशेंस बहुत काम आती है कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, यू शुड नॉट रश थिंग्स। पेशेंस आप बहुत क्रूशियल लेसन है जो आप जेई से लेके जाते हो, और आई गेस ये हर जगह काम आता है, हर जगह, लाइफ के हर जगह। आप तो मुझसे बड़े हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, पर हाँ पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करी जेई के समय, और आई गेस आगे भी बहुत काम आएगी। So, thank you, Rajat. I think what stood out today wasn't just what All India Rank 1 means in rank. I think it's what All India Rank 1 thinks like. I think for all the students who are listening, who are in class 10th,
who are basically halfway through their preparation. I think it's really going to help those students, and they can gain something out of this conversation that we just had. Thank you. And I think you made it clear for those students that it's not about being perfect. हाँ, I परफेक्ट think तो कभी हो ही नहीं सकते आप. yeah, and I think it's about having clarity and basically getting up every day and doing the same routine that you have been doing, right? हाँ बिल्कुल, मतलब आपको टायरलेसली करना ही पड़ेगा. सिलेबस बड़ा है, करना है ही सही, सोच कह रहे हो, लग जाओ. Simple. Right, Rajat. Thank you for being so grounded and open to us today. Thank you. Thank you so much.